हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल कोहली। मैंने अभी दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया है आप लोगों के साथ सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, ये दोनों मोड में हो सकता है, ब्लैक भी और वाइट भी। आप कमेंट करके बताना कि विच नेक्स्ट पेपर किस में सॉल्व करूँ। मैं अभी तो दोनों में 50-50 करा देती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। नाउ लेट्स स्टार्ट our first question. Greater the handicap of student coming to the educational institute, greater the demand of the. Here are four options. It's asking जब handicap students आते हैं, मतलब institutes में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड पड़ती है. So read the option and your right answer is teacher. ओके क्योंकि जब हैंडीकैप स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, टीचर्स की, उन्हें पढ़ाने के लिए. एंड अवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन. तो यहाँ पे ये हमारे एवोल्यूशन की बात हो रही है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. सी रीड आउट द एंड नाउ answer will be, first we should look at the options. The correct answer is, I will just tell answer, I will not confuse you by telling all the options. Your right answer is 4, B, C and D. So B, it replace marks with grade. C, it evaluate every except of the student. D, it help in reducing examination phobia. So what is asking? Characteristics of continuous and comprehensive evolution. So their right answers are three right options. Okay, next, third question. Which of the following attributes donate great strength of teacher? So friends, we are going to participate in NET examination, which is for lecture teacher. Okay, so we should know what are the great aptitudes of teacher. So read out all option and comment your answer. So let me tell you right answer here. See, first of all, do you think full time active involvement in institutional management is any donate great strength of teacher? No. And setting example, willing of put, acknowledging mistake, these all are very important point of good teacher. So according to us, the right answer is second, B, C and D. Now we are going to our very fourth question. Which of the following statement is correct in the context of multiple choice type question? As we all give multiple choice type question, we know what is multiple choice question. So what should be the correct? Read out all the options carefully and then give the answer. So the right answer is, they are more objective than true false type question. First, ये जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होते हैं. ट्रू फॉल्स तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हुआ ना, वो तो ट्रू एंड फॉल्स वाला हो गया. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. As chairman of Independent Commission on Education, Jacques Deorlas' report to UNESCO was titled. See, this is very important question. UNESCO, it is from political, and also from, we can say it is from political and as well as current affairs also, both. And your right answer is 3, learning the treasure within. This time always it take a new title. Okay, UNESCO, its new title is learning the treasure within. Sixth question is very easy. What are required for good teaching? So friends, everyone know what is required for good teaching. All the options are correct.
because a good teacher need all these qualities. So our answer is first B, A, B, C, D. So come to the seventh question. Which of the following statement is not true in the context of participatory research? This is the question of research. This question has been our research. So, what is asking? Not true. Friends, never be confused. Read out question very properly because here written not true. Very and most of the student read thoroughly and just correct option what is true, but read properly. It is asking not. So which of the following statement is not true? And the statement which is not true is 4. Its sole purpose is production of knowledge. No. And every 3 question, read it out. These also every 3 statement is a good, is true for participatory research, but only false statement is fourth one. Okay, come to the next question. Which of the following statement is true in the context of the testing of a hypothesis? This question is also from research. And hypothesis testing में कौन सा गलत है? नो सॉरी, इज ट्रू. हाइपोथेसिस में ट्रू कौन सा है? तो ट्रू वन इज सेकेंड. It is only the null hypothesis that can be tested. Only null hypothesis होता है जिसमें tested होता है. Okay. Ninth question. Which of the following are the basic rules of APA style of referencing format? So friends, पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूँ कि APA स्टाइल क्या होता है. APA स्टाइल वो होता है जिसमें ऑथर और पब्लिकेशन डेट दोनों लिखी होती है. उसे क्या बोलते हैं? APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग. सो तो हम समझ गए कि APA स्टाइल क्या होता है जिसमें ऑथर और डेट ऑफ पब्लिकेशन से मिलके बनती है. राइट आंसर इज सेकेंड, B, C, D. C. देखो, इन्वर्ट ऑथर नेम, लास्ट नेम रिफर्स. C में क्या है? इंटलाइजिंग टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक और जर्नल. Alphabetically index reference list. And these three makes what? A APA typing in which author, publication date and all collaborating together. Question number 10. Which of the following are the characteristic of a seminar? We all know what is seminar, so read out the options properly and give answer. Characteristics of seminar we are talking. So what is the characteristics? 4. A, B, D. What is A? It is a form of academic instruction. Yes. B, it involves questioning, discussion and debate. And what is D? It needs involvement of skilled person. अब ऐसे सेमिनार में किसी को भी तो उठा के बैठा नहीं देंगे, स्किल्ड पर्सन तो चाहिए. और C क्या है ये देखिए जरा हम. इट इन्वॉल्व लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हो. सेमिनार कैन बी विद इन 3 or 4 पीपल ऑल्सो. ओके, तो लार्ज ग्रुप का कोई ज़्यादा इसमें वो इन्वॉल्वेशन नहीं होता. ओके, कम आउट टू द 11th क्वेश्चन. A researcher is interested in studying the prospects of a particular political party in a urban area. What tool should he prefer for the study? What कहाँ की बात हो रही है? अर्बन एरिया. तो अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं? कम पढ़े लिखे. तो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए हम कौन सा वाला टूल प्रेफर करेंगे? क्वेश्चनरिंग. इसमें जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे. ओके, तो आंसर इज 3. Ethical norms is research do not involve guidelines for. एथिकल नॉर्म ये भी आपका किससे है? रिसर्च से रिलेटेड है. ऐसी कौन सी गाइडलाइन होती है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है? इसमें होती है आपकी ओ नो 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 एथिकल नॉर्म इज रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर थीसिस फॉर्मेट होती है. उसमें एथिकल नॉर्म्स जो होती हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती.
Okay friends, here the question is reading comprehensive. आई एम थिंकिंग रीडिंग का सेक्शन अलग से बना लेंगे ताकि इसमें एक साथ मिक्स होके वो हो जाएगा. तो रीडिंग के लिए वी विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर विच रीडिंग एंड ऑल्सो फॉर मैथमेटिकल क्वेश्चंस and DI we will do in another video. In this video only we will do reading, in only we will do research, teaching and communication. And how much questions are there left in reading? I will make another video only for reading. 13 to 17 question we are going to skip here. 13 to 17. What is 18 question? Come to the 18. The main objective of student evolution of teachers are. स्टूडेंट और टीचर का एवोल्यूशन एक साथ क्यों ज़रूरी होता है? तो कोई बता सकता है? एनीवन? कमेंट. एंड द राइट आंसर इज 2. B, C and D. Come to the options. B, to make teacher make teaching seriously. Yes. And what is C? To help teacher adopt innovative method of teaching. Okay. And right answer D also, to identify the area of further involvement in teacher traits. Okay, so if you don't understand anything just comment and tell me. Coming to the 19 question, using the central point of classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of idea is refers to as. This is very easy, mind mapping. आंसर इज माइंड मैपिंग. वाई? सी, अगर हम सेंट्रल पॉइंट से स्टडी कम्युनिकेशन की स्टार्ट करते हैं और बिगनिंग एज अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडिया, मतलब ये माइंड से स्टार्ट करते हैं. हम किससे करते हैं? माइंड में अपनी मैप बना लेते हैं कि हम भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरे क्लास में पढ़ाते हुए चलेंगे. ओके, कम टू द 20. एक्सेप्ट ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज. एक्सेप्ट द वॉइस रेदर देन द स्पीच इज़ नोन एज. तो इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज. ये वैसी वाली लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपने वॉइस टोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज़ कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, जिसमें हम टोन की पिच स्पीड की बात होती है. एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड बाई इट्स. वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स. अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होना बहुत ज़रूरी होता है? इट इज़ कॉन्टेक्स्ट. अगर हमारे पास कुछ बात ही नहीं है, कुछ टॉपिक ही नहीं है, कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है बात करने के लिए, तो हम कैसे बात करेंगे? हाउ डू वी स्टार्ट आवर कम्युनिकेशन? तो राइट आंसर इज कम्युनिकेशन. कम टू द 22 क्वेश्चन. Attitudes, action and awareness is the context of classroom communication are considered. This is very easy question and the answer is non-verbal. If we are using action, एक्शन आप सबको ही पता है बचपन में वर्बल एंड नॉन वर्बल पढ़ाया जाता है. वर्बल जो हम बोल के करते हैं और नॉन वर्बल जिससे हम इसमें एक्शन करते हैं. जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल बचपन से सबको रटाया जाता है ना. दिस इज़ नॉन वर्बल. ओके, कम टू द 23. मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज़. सो व्हाट इज़ द मोस्ट ऑफ्टन टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिकेशन? योर राइट आंसर इज 3. यूटिलरेशन मीन्स होता है कि मतलब यूज़फुल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना. कि ऑफ्टन टीचर एंड ऑफ्टन कम्युनिकेशन इज़ यूटिलिटेशन, यानी कि कम्युनिकेट करना, बात करना किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, यूज़फुल चीज़ों पे. एंड 24. इन अ क्लासरूम कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज़ डिटरमाइंड बाय. दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन. अगर हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ में लेके जाए तो हम क्या बोलते हैं कि किसी के ट्रस्ट मतलब होता है सच. और कोई इंसान जैसे बोलता है ना, अगर तुम सच बोल रहे हो तो देखो मेरी आँखों में, तो वो वाला सीन है यहाँ पे कि सच की पता है किससे चलता है? आईज से. एंड द राइट आंसर इज आई कॉन्टैक्ट. देख लेते हैं एक बार. 4. यस. सो द फ्रेंड्स, हेयर नंबर सीरीज़. ये नंबर सीरीज़ काफ़ी ईजी है तो मैं इसको आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ डिक्टेट करके. 2, 5, 10. तो हाउ इट इज़ केम? सी, 2 के बाद विच कौन सा वाला किया है? 2 में क्या किया है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू 2. तो हेयर क्या किया हुआ इन लोगों ने? सबसे पहले देखते हैं हम. 1 स्क्वायर
2 का स्क्वायर करके उससे 1 से 1 स्क्वायर 1 इंटू +1 कर दिया इसमें, ठीक है। मतलब सब में प्लस किया, 1 का स्क्वायर किया और उसे +1 कर दिया, एंड फिर क्या आ गया, 1 आ गया। 5 कैसे आया, सेकंड 2 का स्क्वायर किया +1 कर दिया, 2 2 जा 4 +1। अब 10 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे हम, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, तो उसमें +1 कर देंगे 10। ऐसे ही 17 आया आपका, 4 का स्क्वायर 16 +1 17। और 26 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 +1 6 26। एंड नेक्स्ट 37 6 6 जा 36 +1 37। एंड योर, तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 41 +1 50। सो राइट आंसर विल बी 150। सो फ्रेंड दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझाना पड़ जाएगा 26 में, तो मैं इसके लिए आपकी एक अलग से वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो हम कॉम्बिनी यानी कि जो हम डिक्टेट करके नहीं करा सकते हैं, मैं उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिनको मैं पूरा सा समझाते हुए बनाऊंगी। ओके, तो हम इधर से आ जाते हैं अपनी, इन सबको छोड़ दो जो आपको समझाने वाले हैं। पी ये बता दूँ मैं अभी, रिलेशन वाला, P and Q are brother, R and S are sister, the son of P is brother of S, so Q is related to R is। तो सबसे पहले ध्यान दो, P और Q जो है वो क्या है, ब्रदर्स हैं। P एंड Q जो ब्रदर्स हो गए, तो R और S हैं सिस्टर्स। तो ये तो पता चल गया, जो ब्रदर्स हैं ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। द सन ऑफ P इज़ ब्रदर ऑफ R, यानी कि P का सन ब्रदर ऑफ R, तो ये क्या हो गया, RPS, यानी कि ये लोग भाई बहन हो गए। सो Q इज़ रिलेटेड टू R, तो Q उसका क्या होगा, तो Q विल बी हर अंकल। तो Q, क्योंकि P और Q जो है वो क्या है, दोनों भाई हैं, और RS जो है भाई, P और Q ये दोनों भाई हो गए, RS एंड ये दोनों सिस्टर्स हो गए, और P इनका क्या हो गया, बेटा। P क्या है इनके, P इज़ द ब्रदर ऑफ S, ठीक है। द सन ऑफ P इज़ ब्रदर ऑफ S। ओके, सो कम टू द 31, कंसिडर्ड द आर्ग्यूमेंट गिवन बिलो। अब ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये आपका देखो क्या है, प्री इन्वॉल्वमेंट टीचिंग, प्री इन्वॉल्वमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज़ क्वाइट फेयर बिकॉज डॉक्टर, architects and engineer who are now employed had to face such testing। ये मतलब बीच में चल रही आर्ग्यूमेंट, तो ये कैसी आर्ग्यूमेंट है, यानी कि दिस आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड सेकेंड एनालॉजिकल, यानी जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, विदाउट लॉजिक दे आर टॉकिंग, सो दिस इज कॉल्ड एनालॉजिक। नेक्स्ट 32, among the following proposition, two are related in such a way that they can both be true, although they cannot be false. Such these which are those proposition? Select the correct code of proposition. So what, I repeat question. Among the following proposition, two are related in such way that they can be true एंड फॉल्स, यानी कि एक ऐसी चीज़ें दो एक साथ मिल सकती है जो सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, तो वो कौन सा प्रपोजिशन है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। तो फर्स्ट कोड क्या बोल रहा है, आप लोग सारे कोड्स पढ़ लो। तो आंसर आपका क्या है 4, सम प्रिटिस्ट आर नॉट कनिंग, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, कनिंग नहीं होते हैं। ओके, A एंड D, कुछ लोग कनिंग नहीं होते हैं, और सम प्रिटिस्ट आर कनिंग, यानी कि कुछ लोग कनिंग होते हैं, कुछ लोग कनिंग नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया, सच भी हो गया और झूठ भी हो गया। ओके, कमिंग टू द 33, अ क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन विथ अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट सम इन्फ्रेंस इज कॉल्ड। ऐसा मतलब क्लस्टर ऑफ प्रपोजिशन, यानी कि उसे क्या बोलेंगे हम, एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि बहुत सारी बातों का, तो उसे क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों का क्लस्टर हो जाता है, बहुत सारी बातों का क्लस्टर हो जाता है, तो उसको किस चीज़ का फॉर्म ले लेती है, वो आर्ग्यूमेंट बन जाती है। फिर कम टू द 34, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन
assertion and reason का बहुत important question होता है. Consider the following assertion and reason and select the correct code given below. No man is perfect. Some mans are not perfect. So इसका आंसर क्या होगा? No man is perfect. Some mans are. So the right answer is 1. Both A and R true. R does not provide sufficient reason for A. देखो दोनों ट्रू हो सकता है पर जो R है वो उसका sufficient reason नहीं दे रहा है कि why no man is perfect. So what is answer? A. 35. A definition that has meaning that is deliberately assigned to some symbol is called. ऐसी definition जिसकी meaning होती है उसे क्या बोलते हैं हम? Stipulative. Stipulative. Okay. What is a stipulative? A definition that has meaning that is deliberately assigned to some symbol is called stipulatory. Stipulative. If the proposition no men are honest is taken to be false, which of the following proposition can be claimed to be true? So what they are taking no men are honest is taken to be false. अगर उसे false कर लें उसे हम उन्हें झूठ मान लिया तो इन propositions में से कौन सा सही होगा? So the answer is 2. Some men are honest. क्योंकि अब उसे तो उन्हें झूठ बोल दिया तो what can we also say? Some men are honest. So here DI we are going to skip it. I will make a personal video for DI and how much answer it is taking 5. It is completely of your 10 number. So friends, come to the 43. NMEICT stand for, it is your National Mission on Education through ICT, and ICT is very important question, not a question, it is very important part. It consists importance as well as, so friend remember it, National Mission on Education through ICT. Which of the following is an instant messaging application? तो आप लोगों को देख के सबसे लगता होगा इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि व्हाट्सएप, बट फ्रेंड्स इट इज़ नॉट द व्हाट्सएप, इट इज़ ऑल 3: व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर, एंड all 3 is correct. So your answer 4 is correct. A, B, C. These all 3 apps are instant messaging app. Okay, remember it. In a computer, a byte generally consists of, very easy, it consists of 8 byte. Okay, 8 bits, 8 bits. A byte consists of 8 bits. Which of the following is not an input device? It is really easy question and your right answer is monitor. Okay, which of the following is an open source software? So as we talk about open source software, so here come Mozilla Firefox, and all are not open but only Mozilla Firefox, remember it. Okay, our 48 question, which of the following enables us to send the same letter to different person in MS Word? See, as all are help us to send but only our mail merge help us to send same letter as in MS Word to another person. Okay, our 49 question, inside rural homes the source of nitrogen oxide pollution may be. See, it is the question of your environment, it is comes from environment. See, so what is asking rural homes में which question? Nitrogen oxide pollution में, तो right answer is all 4. All 3 consist nitrogen oxide, but ये रूरल होम्स में यूज़ किया जाता है खाने पकाने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए. ओके, अवर 50th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग pollen कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन बीइंग? सो ह्यूमन बींग्स में कैंसर कौन सी 2 चीज़ कर सकती है? द आंसर इज पेस्टिसाइड्स एंड lead. So your 1 and 3 both is correct. C. Your question number 51, assertion and reason. So
एजर्शन क्या है हमारा, पीपल पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर डू नॉट नेसेसरी हेल्प इन चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एजर्शन हो गया, और रीज़न क्या दिया इनने, द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रैदर कॉम्प्लेक्स। सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए आंसर, यस। So coming to 52, which of the following phenomena is not a natural hazard? फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। एंड योर राइट आंसर इज केमिकल कंटेमिनेशन, सी 4। ओके, कम टू द 53, as part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030 is, right answer is 4, 350 ZW. Coming to the 54, at present in term of per capita energy consumption, identify the correct sequence. फ्रेंड्स द करेक्ट सीक्वेंस है आपका थर्ड वाला, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। ओके, ये आपको जीडीपी वाला पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभिवन, हाँ अभिवन है, रूसा, RUSA। सो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देखो, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, एंड इसका मतलब मुझे क्या नहीं लगता, डी मुझे करेक्ट नहीं लगता, बाकी सारे करेक्ट लगते हैं, बी, ए, बी और सी, राइट। देखो इसमें क्या क्या आता है रूसा में आपका, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन की सारी क्वालिटी को बढ़ाना, एबिलिटी और इक्वलिटी को एक करना, क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ, लेकिन ये क्या है आपका डी वाला, यूनिवर्सिटी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोनोमस कॉलेज, ये रॉन्ग है। ओके, कम टू द 56 क्वेश्चन, the ground on which discrimination in admission to educational institution is continuously prohibited are, ऐसी कहाँ सी चीज़ होती है जिसमें इंस्टीट्यूशन नहीं होता, सेकंड, ए, बी और सी, डी, नेशनलिटी में नहीं बात होती, बाकी हर चीज़ में तो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का बात है ही। अब जहाँ रहेंगे वहाँ के, तो अब जैसे इंडिया में रहते हैं तो वहाँ की नेशनलिटी तो मिल ही जा रही है। द ground on which discrimination in admission to educational institution is constitutionally prohibited, तो कौन सा होता है वो, रिलीजन, बी एंड सी। सो कमिंग टू द 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लोकसभा, तो लोकसभा के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड रीड आउट द ऑप्शंस and comment your answer on the comment box, and your right answer is 1 only, first is A and C। तो हम देख लेते हैं कौन ए और सी में क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ द लोकसभा, ओके, और सी क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रल सिस्टम इज फॉलोड, ओके। एंड 58, पब्लिक ऑर्डर एज एन लिमिट इन कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इज, तो पब्लिक ऑर्डर कहाँ पे होता है, लिमिट, पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इज, द राइट आंसर इज 2, द स्टेट लिस्ट, यहाँ पे स्टेट की लिस्ट बात होती है, स्टेट इलेक्शंस में पब्लिक आइटम्स की बहुत ज़रूरत होती है। 59, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज़, उसकी टाइमिंग कितनी होती है। फ्रेंड्स जो एक एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, उनकी कोई भी टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती है, द राइट आंसर इज़ नॉट फिक्स्ड। 60 क्वेश्चन विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा, एंड द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा सीट है लोकसभा में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, इट्स माय फर्स्ट वीडियो, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना और कमेंट में प्लीज़ बताना।
और एक चीज़ और जो कि मुझे हेल्प करेगी आप लोगों की बहुत, कि विच इन नेक्स्ट वीडियो किस में बननी चाहिए, ब्लैक और वाइट. ओके, प्लीज़ टेल me in the comment which theme you like, black or white. Okay, thank you. Please comment and tell me.